स्टूडेंट्स, मैं हूँ सुधा झा। मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। फॉर लास्ट 22 ईयर्स मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो चलिए मैं और आप इकोनॉमिक्स की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। Hello students, in this particular series of videos which will be presented in this 2-3 days, it is going to help you to solve the numericals related to national income. Never you will be committing any mistake in solving the national income if you follow the techniques which is given here. We have to go for smart work, we need not to go for hard work. Today we are going to learn that technique. In that technique, first we should remember about 3 different words which we are going to use. One is NFIA, or I can use NFYA. Second one is NIT, and the third one is depreciation. If you are very clear with these 3, never in your life you will make a mistake in national income. Now when we speak for the easy formula for national income, it means we should be careful with these 3 things. First is NFIA, or I can say NFYA. The full form is net factor income from abroad. When I speak net factor income from abroad, I can be used for income, I can be used for income, or even Y can be used for income. How do we calculate net factor income from abroad? It can be calculated by FIFA minus theta. What is FIFA? FIFA is factor income from abroad. Those Indians who have gone outside in any other country or working in any foreign company, when they earn the income, it means the salary or the wages is paid by the foreign people. So that is factor income from abroad. But when I speak FITA theta, it means factor income to abroad. The people who are coming from other countries working in India. So when we are paying the income, it is always assumed that this income what they are earning either today or tomorrow, or it may be after some time, they'll be carrying this to their own country. It means the income of my country is going out. So NFIA or NFYA is calculated as FIFA minus theta. Remember, in the question, if this word is not given net, if this word net is not there, it is given factor income from abroad. Only if this word is given, it means FIFA, FIFA. And if it is given factor income to abroad, instead of from, if it is to, then factor income to abroad. So when we subtract, we get net. Be careful, in the numerical we should have this word net. Then it is NFIA or NFYA. It can be calculated by one more formula, that is national income minus domestic income. National income minus domestic income. Now, when I go to NIT, this is formula number 2. NIT speaks for net indirect taxes. How do we calculate net indirect taxes? It is IT minus subsidies. What is IT? IT is indirect taxes. Any tax paid by the corporation tax, any tax which is paid by the firm, or any tax which they are collecting from the consumer when the consumer buy the product, that is all indirect taxes. And subsidy is a financial grant which is given by the government for the companies for the production. So IT minus subsidies is always equal to NIT. If in the question indirect tax is given and subsidy is given, you subtract these two. But in case indirect tax is not given, only subsidy is given, in that particular numerical, take the value of IT as 0. Or if subsidy is not given, then take the value of subsidy as 0. It depends. If both are given, well and good, we can find NIT. There is one more method of calculating NIT, and that is market price minus factor cost. Market price is that price at which the company is selling the goods in the market, whereas factor cost is that price at which the company is able to produce the good. So in factor cost, when they add the indirect taxes, then it becomes market price. That is why market price minus factor cost is always equal to NIT, that is net indirect taxes. Third one is depreciation. The definition of depreciation is wear and tear of fixed assets used during a fiscal year, or I can say consumption of a fixed capital. How it is calculated? Depreciation is calculated as gross value minus net value. Gross value of anything, it can be gross domestic product minus net domestic product. It can be gross national product minus net national product. So gross includes depreciation in it. So when I exclude gross minus net, means gross minus net, when I am doing what I am getting? Depreciation. So if I know this 3 formula, I can learn the definition and I can make the formula very easy. Now see,
After learning this three formula, which is very important, we should learn how can you learn the definition or how can you make the formula. For learning the definition, because there are 8 different topics which you need to learn for your exams, whether you are a student of class 12, you are a student of BCom or you are a student of MCom, we need these 8 formulas to be learned up. So mugging up is not possible. So the smart work what we are going to do is, we will learn only one definition of GDP MP. We will learn only one definition of GDP MP. What is the definition of GDP MP? How I will read GDP MP? Gross domestic product. Gross domestic product at market price. I have written here MP stands for market price. So how we will read again? Gross domestic product at market price. Now the definition how we are learning. I said only one definition to be learned. You will always learn the definition of GDP MP. How we will learn? The money value of all final goods and services produced within the domestic boundary of a country during a particular period of time. This is known as GDP MP, gross domestic product at market price. So how we learn? The money value of all final goods and services produced within the domestic boundary of a country during a particular period of time. Now how to learn the definition of GDP FC? But before learning the definition, we should know to make the formula. How to make the formula? I have learned the definition of GDP MP. So write here GDP MP. GDP MP. How I'll make the formula? Now see, when we make the formula, it can move in this way. Correct? What is written here? Market price. What is written here? Factor cost. Okay, one more thing I have not said here. That is, national income is always greater than domestic income. Correct? When I speak of NIT, MP is always greater than FC. When I speak about depreciation, gross is always greater than net. How can you know? In the formula, हमने formula में क्या किया? National income में से domestic income minus किया. इसका मतलब national income बड़ा होता है, तो national income बड़ा है domestic income से. यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? MP minus FC, तो MP बड़ा है FC से. यहाँ मैंने लिखा था gross minus net, तो gross बड़ा है net से. ठीक? अब formula देखो. MP FC. MP क्या है? बड़ा है. बड़ा को जब छोटा बनाना है तो हम हमेशा माइनस करेंगे. दिमाग में रखोगे, फॉर्मूला हम इस साइड बना रहे हैं. वी आर मेकिंग द फॉर्मूला टू दिस साइड, वी आर नॉट मेकिंग फॉर्मूला दिस साइड. सो वंस यू आर मेकिंग द फॉर्मूला दिस साइड, यू हैव टू थिंक इफ इट इज बिग हियर यू विल सब्सट्रैक्ट, इफ इट इज स्मॉलर हियर यू विल ऐड. सो MP इज ग्रेटर देन FC. MP इज ग्रेटर देन FC. MP बड़ा है, उसको छोटा बनाना है तो क्या करेंगे? माइनस. अब माइनस किसको करेंगे? माइनस तो आपको समझ में आ गया. माइनस किसको करेंगे? तो MP और FC के डिफरेंस को क्या कहते हैं? MP और FC के डिफरेंस को क्या कहते हैं? NIT. यहाँ पे हमने लगा दिया NIT. चलो अब ये बराबर हो गया. PP प्रोडक्ट प्रोडक्ट, नो प्रॉब्लम. DD डोमेस्टिक डोमेस्टिक, नो प्रॉब्लम. GG ग्रॉस ग्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं. फॉर्मूला दिए. मतलब GDP MP से हमने GDP FC ऐसे बनाया. अब एग्जाम में लिखना है डेफिनेशन. सेम डेफिनेशन हम लिखेंगे. ठीक है? जब भी मैं माइनस करूंगी, या तो इंग्लिश में आप माइनस लिखोगे, ठीक है, या हम इसको रिमूविंग कर सकते हैं, नेग्लिजेंस कर सकते हैं, और अगर प्लस करते हैं तो एडर इंक्लूडेड. मैं माइनस लिख सकती हूं और आई कैन यूज अ वर्ड एक्सक्लूडेड. करेक्ट? अब देखो कैसे लर्न करेंगे. The money value of all final goods and services produced within the domestic boundary of a country during a particular period of time, excluding net indirect tax. बन गया definition? Excluding net indirect tax बन गया definition? क्योंकि GDP MP का तो हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? माइनस. अगर एक्सक्लूडिंग भूल जाओ एग्जाम में तो माइनस MINUS लिखोगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. डेफिनेशन भी लर्न हो गया, फॉर्मूला भी बन गया. अब नेक्स्ट पे देखो, GNP MP. हमने लर्न किसका डेफिनेशन किया है? GDP का. हम जिसका डेफिनेशन लर्न किए हैं हमेशा फॉर्मूला उसी से बनाएंगे. हमने फॉर्मूला GDP MP से बनाना है, तो GDP MP. अब देखो यहाँ फिर मैं एरो बनाती हूँ, आप भी फिर एरो बनाएंगे. ठीक है? अब देखो यहाँ MP सेम, मार्केट प्राइस सेम, कुछ नहीं करना. प्रोडक्ट सेम, कुछ नहीं करना. डोमेस्टिक नेशनल
अलग हो गया। तो डोमेस्टिक बड़ा है कि छोटा, फिर ऊपर चलो, डोमेस्टिक छोटा है तो छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, प्लस, छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, प्लस। पर डोमेस्टिक और नेशनल, तो डोमेस्टिक और नेशनल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, NFIA या NFYA। हम दोनों में से मैंने बोला कुछ भी लिख सकते हो, करेक्ट, NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करेक्ट। फिर ग्रॉस ग्रॉस सेम है, मतलब फॉर्मूला दी एंड, फॉर्मूला का एंड हो गया। अब जब मुझे डेफिनेशन अगर कोई पूछ दे कि भाई बहुत आता है नेशनल इनकम, डेफिनेशन सुनाओ, तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो हमें दो वर्ड याद करना है जब भी हम लिखेंगे, सॉरी ये इंक्लूडेड है, जब भी हम लिखेंगे तो ऐड लिख सकते हैं या मैं इंक्लूडेड लिखूंगी, इंक्लूसिव भी लिख सकती हूँ, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, फिर GDP-MP से हमने बनाया, यहाँ तक तो मुझे डेफिनेशन रटा हुआ है। फिर हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं तो हम एडिंग की जगह क्या लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हो गया डेफिनेशन, फॉर्मूला भी हो गया। इसी तरह से GNP-FC, तो GNP-FC फॉर्मूला हम बना सकते हैं, हमने रटा किसका डेफिनेशन, GDP-MP का रटा हुआ है। अब फिर हम एरो बनाएंगे, एरो इसलिए बनाते हैं कि हमें देखना है दोनों साइड में नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए क्या क्या चेंज करना है। यहाँ है MP, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा है क्योंकि मुझे इधर फॉर्मूला बना रहे हैं, हमें हमेशा इसको देखना है, तो मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस में बनाना है, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस बड़ा है, छोटा बनाना है, माइनस। MP और FC के डिफरेंस को क्या कहते हैं, MP और FC के डिफरेंस को NIT कहते हैं, हमने लिख दिया NIT। फिर प्रोडक्ट सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल, तो डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक क्या है, यहाँ पे देखो डोमेस्टिक छोटा है, बड़ा करना है, प्लस। डोमेस्टिक और नेशनल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू NFIA या NFYA, तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब डेफिनेशन कैसे बोलेंगे हम, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, खत्म। अब NDP-MP का फॉर्मूला बनाना है, पर हमने डेफिनेशन किसका याद किया, GDP-MP। हमेशा याद रखोगे कि इसी डेफिनेशन से और GDP-MP से ही सारा फॉर्मूला बनाओगे, तब आप इकोनॉमिक्स को बहुत लाइक करोगे और नेशनल इनकम चैप्टर को। अब इसमें देखो मार्केट प्राइस सेम है, तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगी, कुछ नहीं, प्लस माइनस करना है। प्रोडक्ट सेम है, कुछ नहीं करूंगी। डोमेस्टिक सेम है, वाओ, इधर भी कुछ नहीं करना है। ग्रॉस और नेट, यहाँ पे है ग्रॉस बड़ा होता है कि छोटा, फिर हम ऊपर देख रहे हैं ग्रॉस बड़ा है, बड़े को छोटा करना है मतलब माइनस। ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो ग्रॉस माइनस नेट को डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब फॉर्मूला लिख सकते हैं, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। हो गया, कितना इजी, और फॉर्मूला भी बनते जा रहा है साथ में, देखो फॉर्मूला भी कितना इजी टेक्निक है। नेक्स्ट NDP-FC, इसको भी बनाएंगे GDP-MP। एक चीज़ नोटिस करोगे, सभी फॉर्मूले को मैंने GDP-MP के साथ आज सिखाया है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करेंगे आपकी ये टेक्निक बहुत इजी पड़ेगी, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद बोलोगे वाह सुधा मैम ने बहुत अच्छा सिखाया, जिसे कभी आप लाइफ में रॉन्ग नहीं करोगे। अब देखो यहाँ MP-FC, आपको ये पता है MP बड़ा है, MP और FC के डिफरेंस को क्या कहते हैं, NIT, तो माइनस कर दिया NIT। PP सेम है, प्रोडक्ट डोमेस्टिक सेम है। G ग्रॉस नेट, ग्रॉस बड़ा होता है तो पहले बड़ा को छोटा बनाना है, माइनस। ग्रॉस माइनस नेट डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला बन गया। तो कैसे याद करेंगे इसका डेफिनेशन, कैसे याद करेंगे, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, क्योंकि दोनों को माइनस कर रहे हैं, इसे क्या लिखेंगे, एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। NNP-FC, फिर इसको भी मैं बनाऊंगी GDP-MP से। अब देखो फिर हमने एरो बनाया दोनों साइड में, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, माइनस कर दिए,
मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, डिफरेंस को क्या कहते हैं, NIT। बेटा ये तीन चीजें तो दिमाग में 100% रखनी है, तभी हमारी फॉर्मूला बनती है। बस मैं ज्यादा याद करने कहाँ बोल रही हूँ कुछ भी। प्रोडक्ट इज सेम, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा बनाना है, क्या करेंगे, प्लस। डोमेस्टिक और नेशनल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फिर आ जाओ आगे, ग्रॉस नेट, ग्रॉस बड़ा होता है, छोटा करने के लिए फिर माइनस। हमें इसी साइड को देखना है, इस साइड देखकर मत सोचना, जिससे फॉर्मूला बना रहे हैं वो बड़ा है कि छोटा, ग्रॉस बड़ा है इसलिए माइनस। ग्रॉस और नेट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। अब इसका जब मैं फॉर्मूला लिखूंगी या डेफिनेशन लिखूंगी, दोनों माइनस को एक साथ लिखूंगी फिर प्लस को। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखूंगी मैं, The money value of all final goods and services produced within the domestic boundary of a country during a particular period of time, excluding net indirect taxes and depreciation and including net factor income from abroad. क्योंकि दो माइनस है तो दोनों माइनस को एक साथ बोलो, बार बार नहीं लिख सकते। एक्सक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक बार एक्सक्लूडिंग लिखो, जो जो एक्सक्लूडिंग में आया वो। आ जाओ लास्ट, NNP MP, इसको भी मैं बनाऊंगी GDP MP से, तो फिर मैं एरो बना रही हूँ। MP MP सेम नो प्रॉब्लम, PP सेम नो प्रॉब्लम, डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक फिर क्या होता है, छोटा, जैसे ही छोटा है प्लस डाल दो। अभी तक तो आप सीख गए होंगे। और दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं भाई, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, NFIA। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। फिर ग्रॉस और नेट, ठीक है। तो ग्रॉस क्या है, बड़ा है, छोटा करना है, सीधा बड़ा है माइनस डालो। दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। बन गया फॉर्मूला, लर्न कर लिया टेक्निक। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, उतना टेंशन रहता है, 8 डेफिनेशन पढ़ना है, क्यों 8 पढ़ोगे, एक GDP MP का याद करो। एग्जाम में कुछ भी पूछे फॉर्मूला बनाओ और यही डेफिनेशन उठा के लिख देना, लास्ट में खाली प्लस या माइनस लिखना है। तो बेटा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो ये 3 चीज़ें इसकी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक चीज़ और, जब मैं NDP FC कहती हूँ, ये होता है डोमेस्टिक इनकम। कभी कभी एग्जाम में आएगा फॉर्मूला फॉर डोमेस्टिक इनकम, यानी कि NDP FC, फॉर्मूला फॉर नेशनल इनकम NNP FC। एक और चीज़, बच्चे गलत इसको पढ़ते हैं। अगर NNP आ गया, पहला N को नेट पढ़ेंगे, दूसरे N को नेशनल पढ़ेंगे, बीच में जब भी N होगा वही नेशनल होगा। आगे वाला N को कभी भी नेशनल नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऐसे नहीं नेशनल नेट प्रोडक्ट नहीं, आगे वाला N हमेशा नेट होता है। तो आज तो आपने फॉर्मूला बनाना अभी अभी सीख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड दिखेगा, नेक्स्ट वीडियो देखेगा, उसमें मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, फिर 1 2 3 मेथड करेंगे। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल मैं 1 2 लूँगी और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक, बाय एवरीवन, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक भी करें।